Hello everyone. So let's continue. Last lecture में we guys were done with the theoretical part on functions. Functions से related सारी theory हम almost discuss कर चुके हैं. Today we are going to begin with the sheet discussion. I hope everyone has this sheet. What I can see is this is approximately a 3-page sheet and approximately 60 questions. Okay, so let's very quickly start solving it. But before solving, just one thing. While solving this sheet of functions, we are going to maintain the same approach which we do for all the rest of the chapters. That is, I expect you कि आज के लेक्चर में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो आपने एटलीस्ट एक बार अटेम्प्ट तो किए ही होंगे. वेरी ट्रूली दिस इज ऑल इन योर इंटरेस्ट, बिकॉज अगर आप अटेम्प्ट करेंगे so you understand that you will be solving it with one approach and I'll be solving it with another approach. तो at least जब आप मेरे साथ solve करेंगे दूसरी बार यहाँ पे, so you will be getting 2 approaches to solve the question, okay? And otherwise you will be getting just mine approach. So I very diligently request you कि at least एक बार questions attempt तो करिए ही, तभी आपको आपके doubts भी clear होंगे and you will understand कि कौन सा concept clear है और कौन सा नहीं है. Perfect? That sounds good? Okay. So let us start solving the sheet. So very quickly let us start with the first question. So first question of the sheet is, we have to prove that y equals to mod sin mod x is a function. Okay. So हमें prove करना है that this relation right now y equals to mod sin mod x is representing a function. Okay. Now let us go back to the definition of function. एक relation को हम function कब कहते हैं? तब जब that relation all the elements in the domain are covered. Okay, all the elements in the domain have an image. Second, all the elements in the domain have a unique image. या फिर मैं ऐसे कहूँ, अगर मैं इसी चीज को graphically represent करना चाहूँ. Okay, so this graph, whatever this graph would be, it should be defined in the complete domain. Okay, जो भी डोमेन है उसमें हर जगह ये ग्राफ एग्जिस्ट करना चाहिए, कहीं भी ग्राफ ऐसा नहीं हो कि एग्जिस्ट नहीं करता. सेकेंड, यूनिक इमेज, विच मीन्स आई कैन से कि x की y की एक इमेज के करस्पॉन्डिंग x की एक ही इमेज होनी चाहिए. ओके, तभी यूनिक होगा. बेसिकली क्या हो रहा है, दिस इज माई x एंड दिस इज y. तो मैं चाहती हूँ x की एक इमेज के करस्पॉन्डिंग y की एक ही इमेज हो, 2 इमेजेस ना हो. दैट इज व्हाट आई वांट, कि x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की एक ही वैल्यू है, 2 वैल्यू ना हो. तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? दिस इज माय लाइन x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट a. अगर ये लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की एक ही वैल्यू है, बट अगर इस लाइन ने ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, विच मीन्स x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की 2 वैल्यू है, मतलब ये फंक्शन कुछ इस तरीके का है. ओके, विच मीन्स दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ फंक्शन, दिस रिलेशन इज नॉट गोइंग टू बी अ फंक्शन. सो फंक्शन है कि नहीं, ये टेस्ट करने का क्या तरीका है? पहले तो ये देख लो कि ग्राफ अपने डोमेन में हर जगह पे डिफाइंड है. कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे ग्राफ की डेफिनेशन डिफाइन नहीं होती हो. फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकेंड पॉइंट शुड बी कि ड्रॉ लाइन पैरेलल टू y axis, x axis, sorry y axis exactly. If this line intersect the graph at more than 2 points, this means corresponding to one value of x, that is x equals to a, there are 2 values of y, which means at this graph is not a function, otherwise it is going to represent a function. समझ में आया? हम क्या करेंगे, हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे. अगर उस लाइन ने ग्राफ को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, मतलब x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की एक ही वैल्यू है, तो ये ग्राफ फंक्शन है, अदरवाइज इट इज नॉट अ फंक्शन. ओके, सो वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग हियर. सो लेट्स इरेज दिस. ओके, now y equals to mod sin mod x is defined for all x belongs to R. ये तो हर रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. इट इज डिफाइंड फॉर कंप्लीट डोमेन. कहीं भी ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है या फिर नॉट डिफाइंड नहीं होता है. नेक्स्ट थिंग, लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. ओके, सो वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x, और आई कैन से sin mod x और फिर इसका भी mod.
So I have to basically draw the graph of mod of sine mod x. Perfect. So let us do one thing. Let us first draw the graph of sin x for x greater than 0. Okay. Reason being कि जो ये ग्राफ प्लस x के लिए बिहेव करता है वही इस ग्राफ को माइनस x के लिए बिहेव करना पड़ेगा. ट्रू, वी अंडरस्टैंड दिस. तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. This is my sin x for x greater than 0. Okay. This graph I have to extend for negative x axis even. क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव x axis में है वही negative x axis में है. Understand now what is this going to be? This is going to be mod of sin x and minus, or I'll say sin of minus x. This is for x greater than 0. Perfect. So यहां पर ये ग्राफ ऐसा बनेगा. सी, अगर बेसिकली sin x का ग्राफ बनाते तो वो यहां कुछ इस तरीके का बन रहा होता. वो ग्राफ यहां पर कुछ इस तरीके का बन रहा होता. But what we have to do is we have to take a minus of it. Okay. So यहां पर भी ये ग्राफ इस तरीके का बनेगा. So what I have drawn right now is the graph for, sorry, not this way. यहां पर तो नीचे ही होगा ना. Yeah. Perfect. So right now what is there on the blackboard is the graph for sin mod x. This is not the graph for mod sin of mod x. Right now what we have drawn is the graph of sin mod x. अब समझिए, जब मैं इसमें mod लगा दूंगी मतलब ये ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही दे सकता है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं देगा. मतलब y एक्सिस के x एक्सिस के बिलो जो भी नेगेटिव वैल्यूज थी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी. तो नाउ दिस ग्राफ हैज टू बी समवेयर अराउंड दिस वे. ट्रू, वी अंडरस्टैंड कि जो भी नेगेटिव वैल्यूज थी अब हमें उन्हें भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. सो ये जो ग्राफ नेगेटिव एक्सिस में था उससे मैं उठा के पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ले आऊंगी, एक्स एक्सिस के ऊपर ले आऊंगी. तो दिस इज माय ग्राफ फॉर मॉड ऑफ साइन मॉड एक्स. एक बार और समझाओ कैसे बनाया, एक बार जल्दी से बता देती हूँ. देखिए, सबसे पहले क्या किया, हमने नॉर्मल साइन एक्स का कर्व बनाया. ठीक है, लेट अस से दिस इज माय कर्व ऑफ साइन एक्स. फिर हमने साइन मॉड एक्स का बनाया. अब साइन मॉड एक्स के कर्व को बनाने के दो तरीके, या तो मैं कहूं जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है वही नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो मैं इसे इस तरह का बना दूं. ठीक है, या फिर मैं इस तरीके से लिख दूं, दिस इज गोइंग टू बी मॉड ऑफ साइन माइनस एक्स. तो साइन माइनस एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में, इस ग्राफ का नेगेटिव जो व्हाइट में है उसका नेगेटिव. ओके, सो वो भी सेम होता. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन मॉड एक्स. बट हमें चाहिए मॉड साइन मॉड एक्स का ग्राफ. तो हमने क्या किया, मॉड साइन मॉड एक्स का मतलब कि अब y की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही हो सकती है. तो अगर कभी नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो उससे पॉजिटिव बनाना है. मतलब एक्स एक्सिस के नीचे जो भी वैल्यूज थी उन्हें हमें एक्स एक्सिस के ऊपर ले जाना है. सो ये एक्स एक्सिस के नीचे था, इसे मैं ऊपर ले आई. Here this was below x axis, so I got it above x axis, and this is my graph of mod of sine mod x. I hope now it is clear. Perfectly clear? Okay. So this is my graph of mod sine mod x. Now what we have to check is कि कोई भी y axis से parallel line इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे. So let us draw a line parallel to y axis at many places. And very clearly this line intersects the graph at just one point. So this graph is a function. So can I write, for a graph to be a function, a line parallel to y-axis intersects, or I say must intersect,
द ग्राफ, सी मस्ट इंटरसेक्ट द ग्राफ से ये रिप्रेजेंट हो जाता है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज अ वैल्यू ऑफ वाई, ओके, और ऐसे एनी लाइन मस्ट इंटरसेक्ट द ग्राफ एट अ सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट से हमने ये इंश्योर कर दिया कि इट इज नॉट अ मेनी टू वन फंक्शन, और मस्ट इंटरसेक्ट से हमने ये इंश्योर कर लिया कि ऑल द पॉइंट्स इन द डोमेन आर मैप। सो दिस इज द कंडीशन फॉर अ ग्राफ टू बी अ फंक्शन। इसी बेसिस पे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो विल यू गाइस सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन नाउ? So second question is we have to prove that this graph mod y equals to mod ln mod x is not a function. There we have to prove this is a function and now we have to show that this graph is not a function. So can you guys do? बताइए क्या करेंगे? Let me get some other colored chalks. Yes. So अब मुझे बताइए यहाँ पे हम क्या करेंगे? y equals to ln x, mod y equals to mod ln mod x, ओके। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए लेट अस डू वन थिंग। सबसे पहले लेट अस ड्रॉ द ग्राफ फॉर y equals to ln x, ओके। वन थिंग फॉर दिस ग्राफ x कैन नॉट बी 0, तो इसकी डोमेन में से हमें x नॉट इक्वल्स टू 0 कंडीशन पुट कर देनी चाहिए, x कैन नॉट बी 0 हियर। Perfect. Now let us draw the graph of y equals to ln x. So what I have drawn right now is the graph of y equals to ln x, and this point is x equals to 1. Okay. Now let us draw the graph of ln mod x. Okay. अभी हमने जो white में draw किया that is y equals to ln x. Now the one in green that I'll be drawing is y equals to ln mod x। देखिए ln mod x से ये हो जाएगा कि जो पॉजिटिव x एक्सिस में हो रहा था वही नेगेटिव x एक्सिस में होगा। सो यहाँ पे भी we'll have one more graph, okay। So this is the graph of y equals to ln mod x, simple। जो पॉजिटिव x एक्सिस में हो रहा था वही नेगेटिव x एक्सिस में कर दो, तो we'll get the graph of ln mod x। Third, we have to draw the graph of y equals to mod ln mod x, ठीक है। mod ln mod x से मुझे क्या समझ में आता है कि जो भी चीजें x एक्सिस के नीचे थी मुझे ऊपर कर दूं, क्योंकि y f से पॉजिटिव वैल्यूज लेगा तो पॉजिटिव रहेगी, जो वैल्यूज नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव बन जाएगी। तो ln mod x का ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ये तो जो पॉजिटिव था जो नेगेटिव x एक्सिस के नीचे था मुझे उसे x एक्सिस के ऊपर ले जाना है। सो यहाँ पे ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। जस्ट अ सेकेंड। बेसिकली जो x एक्सिस के नीचे था उसे मैं x एक्सिस के ऊपर ले गई, ठीक है। लास्ट हमें एक और चीज चाहिए इसमें, ओके। व्हाट वी बेसिकली नीड इज द ग्राफ फॉर mod y mod ln mod x। तो अब हमें mod y भी करना है। सी इसका मतलब ये होता है कि जैसा प्लस y के लिए बिहेव करेगा वैसा ही नेगेटिव y के लिए भी बिहेव करेगा, ठीक है। मॉड x का मतलब ये होता है कि जैसा प्लस x के लिए बिहेव कर रहा है वैसा ही नेगेटिव x के लिए बिहेव करेगा। जब मैं कहती हूँ मॉड y तो मतलब जैसा पॉजिटिव y के लिए बिहेव कर रहा है वैसा ही नेगेटिव y के लिए बिहेव करेगा। तो जो चीजें अभी हमने पॉजिटिव y एक्सिस में बनाई थी अब सेम चीजें हम नेगेटिव y एक्सिस में भी बना देंगे, ओके। So finally the one I have drawn in pink right now is the graph for mod y ln mod x। क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर। एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं। देखिए वेरी इजी।
First we did was we drew the graph of ln x. So this was simply the graph for ln x. ln mod x कहा, तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो रहा है वैसा कि वैसा मैंने नेगेटिव एक्स एक्सिस में कर दिया. जब मैंने मॉड ऑफ लॉन मॉड एक्स कहा तो मैंने कहा कि अब सब चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होगी. तो जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में था उसे मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ले आई और हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बन गया था. ठीक है, अब हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में कुछ भी नहीं था. ट्रू, एक्स एक्सिस की सब कुछ ऊपर था पॉजिटिव वाई एक्सिस में. और जब मैंने कहा मॉड वाई लॉन मॉड एक्स, मतलब जो प्लस वाई के लिए होता है वही माइनस वाई के लिए करना था, तो मैंने इसी चीज को नेगेटिव वाई एक्सिस में एक्सटेंड कर दिया. ट्रू, सो दिस इज माय ग्राफ ऑफ मॉड वाई मॉड लॉन मॉड एक्स. अब हमें प्रूव करना है कि दिस ग्राफ इज नॉट अ फंक्शन. वेरी इजी, हम क्या करें, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दे जो y एक्सिस के पैरेलल है. लेट अस ड्रॉ दिस लाइन and very clearly this line is intersecting the graph at 2 points, one at this point and another at this point. So since a line parallel to y axis intersects the graph at 2 points, so this graph is not a function. 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट का मतलब क्या हो रहा है, ये many/1 फंक्शन है. One value of x has 2 images in y, or corresponding to one value of x has 2 images in y, or corresponding to 2 values of y there is one pre-image in x. Okay, one pre-image that is x, which means ये ग्राफ फंक्शन नहीं है. सबको क्लियर है. जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि एक फंक्शन, एक इक्वेशन दी हो और उसे प्रूव करना है कि वो फंक्शन है या नहीं है, तो उसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए और एक लाइन ड्रॉ करिए एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल. अगर उस लाइन ने ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, इट इज नॉट अ फंक्शन और एल्स इट इज अ फंक्शन. क्लियर? जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, okay, third question. We have to find the domain of function which is given by f of x equals to 1 upon under root mod greatest integer function of mod x minus 1 mod minus 5. Okay, so question क्या है, we have to find the domain of this function which is given by 1 upon under root mod greatest integer function of mod x minus 1 minus 5. अब लास्ट लेक्चर याद कीजिए, कल का मैंने आपको कुछ नॉर्मल सी टिप्स दी थी जो आपको डोमेन फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी. पहले मैंने कहा था कि अंडर रूट के अंदर वाली टर्म को हमेशा पॉजिटिव बना दीजिएगा. ओके, सो विच मीन्स पहली कंडीशन तो होगी मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ मॉड एक्स minus 1 minus 5, this has to be greater than or equals to 0. मैंने कहा था कि रेडिकल में जो टर्म है हमेशा उसे पॉजिटिव बना दीजिए. सेकेंड, डिनोमिनेटर की टर्म हम कभी भी नॉट इक्वल्स टू 0 हो, विच मीन्स ये इक्वल्स टू वाला साइन भी हटा दीजिए. सो आवर कंडीशन फॉर डोमेन इज that what is there in the denominator cannot be equals to 0, that is the first condition. और रेडिकल के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव हो. सो पॉजिटिव हो के लिए हमने क्या किया था, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ mod x minus 1 minus 5 has to be greater than or equals to 0. But since this is in denominator, this cannot be even equals to 0. तो हमने equals to साइन हटा के सिर्फ ग्रेटर साइन रहने दिया. ओके, परफेक्ट. समझ में आया डोमेन के लिए स्टार्ट कहां से करना है. ओके, अब वी हैव टू सॉल्व दिस. Whatever the result we get is the domain, this from this equation, which means what is this telling here is mod of greatest integer function of mod x minus 1 has to be greater than 5. Perfect. Which means मैंने कल आपको बताया था if mod x
is greater than a, this implies either x is greater than a and x is less than minus a. Perfect. This we discussed yesterday, which means here greatest integer function of mod x minus 1 has to be greater than 5 and greatest integer function of mod x minus 1 has to be less than 5. Perfect. देखिए, if I say x greatest integer function of mod x is greater than 5, what does this means? अगर हम greatest integer function का ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिए 5 to 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होती है 5. ओके, 5 इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूडिंग 6. 6 to 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होती है 6, which means for mod x to be greater than 5, this implies x should be greater than or equals to 6. True. Which means mod x minus 1 has to be greater than or equals to 6. और यहाँ देखिए mod x minus 1 should be less than 5. Okay, which means sorry less than minus 5. अब यहाँ देखिए -4, -5, -6. -4 से -5 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? सी, -4 से -5 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होती है -4. ट्रू. -4 इंक्लूसिव एंड -5 एक्सक्लूडिंग. ओके, -5 to -6, this value turns out to be -5. -5 inclusive and -6 excluding, which means sorry, -5 inclusive and -4 excluding and -6 including and -5 excluding. Okay, yeah, now this is okay. ठीक है, ये closed और ये open. Okay, which means for this to be less than -5, I can just write mod x minus 1 has to be less than -5. Greatest integer function of mod x to be less than -5 क्या हो जाएगा? सिर्फ -5 से छोटा होना जरूरी है. अपने आप its greatest integer function will turn out to be -6. Okay, so what we have to write here? X should be less than -5. So I have written it mod x minus 1 should be less than -5. This gives me mod x should be greater than 7 and this gives me mod x should be less than -4, which is not possible because mod x is always positive. So ये वाली condition तो हमको right वाली eliminate करनी है. We are just left with mod x greater than or equals to -7, which means x greater than equals to 7 and x less than equals to -7. Perfect. So this comes out to be, I can write this as x belongs to -infinity to closed interval 7 union closed interval 7 to infinity, and this is the domain of our function. Clear? Perfectly clear? एक बार फिर से बताऊं. देखिए ये कंडीशन हमने क्यों लिखी, समझ में आया? रेडिकल के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर 0 से इक्वल ना हो. ओके, वी जस्ट सॉल्व दिस. अब ये दो चीजें आई. एक चीज देखिए, mod x ग्रेटर देन 5 मतलब 6 से बड़ा होना चाहिए. और यहाँ देखिए -5 से -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू -5 इज गोइंग टू बी -5 -4.5. ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू -4.5 दैट इज -5. और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 5 to 6 में इट इज -6. So for mod x to be less than -5, the only condition required is x should be less than -5.
यही चीज हमने यहाँ लिख दी, mod x should be less than -5. Mod x minus 1 less than -5 which means mod x should be less than -4 which is not feasible because mod x तो हमेशा positive होता है, it cannot be a negative value. So we adjusted with this condition over here and this gave us -infinity to 7 union 7 to infinity. Excuse me, yeah. Clear है? So this is the answer of our question. Domain of this function is to infinity. Perfect. Now let us solve fourth question. Fourth question is, we have to find the domain of f of x which is given by under root 1 minus mod x upon 2 minus mod x. Perfect. अब देखिए डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता which means mod x cannot be equals to 2 which means x cannot be equals to plus 2 and x cannot be equals to minus 2. ठीक है, एक कंडीशन तो हमने पहले ही लिख दी. नेक्स्ट, रेडिकल के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव हो which means 1 minus mod x upon 2 minus mod x should be greater than 0 and I can write greater than or equals to 0. Perfect. Which means अगर मैं mod x के टर्म्स में बात करूं, this is 1, this is 2, 1, 2 और अगर हम उसे प्लॉट करें तो when mod x is greater than 2, so what is this? This is positive. This would be, let us say 1 minus 3 upon 2 minus 3. So this is going to be positive. यहाँ पे this is negative and again positive. Clear? Perfectly clear. Which means either mod x should be less than 1. I can write less than or equals to 1 or and mod x should be greater than 2. Perfect. Which means mod x less than or equals to 1 which gives us x varying from minus infinity to 1 union 1 to infinity. Perfect. Sorry, mod x should be less than 1 which means x varying from minus 1 to 1 union this is giving us mod x greater than 2 which means mod x greater than 2 which means minus infinity to 2 union 2 to infinity. So this is our answer, minus 1 to 1 and minus infinity to 2 union 2 to infinity. क्वेश्चन क्लियर है? इजी था. सी द इम्पोर्टेंट पार्ट इज टू एनालाइज की फंक्शन डोमेन कैसे निकालनी है. सो फर्स्ट इज कि हम रेडिकल के अंदर वाली टर्म्स को पॉजिटिव रखें और सेकंड डिनोमिनेटर 0 ना हो. इन दो रूल्स को इस वक्त हमने यूज किया. आई होप क्लियर है. सो लेट अस सॉल्व फिफ्थ क्वेश्चन नाउ.